So my screen is visible to all of you, right? Yes, sir. Yes, sir. But today also you will get some different view, like a classroom. Okay, you will see me in front of you. So here, okay, here things are seen like proper, right? Yes. Because क्या होता है ये इमेज कभी कभी उल्टा दिखता है, मैंने इसलिए पहले इससे कुछ लिखना शुरू किया. So our first module is Linux. So our journey will be like this. Linux, then Ansible, then Git and GitHub, then AWS. These are the 4 modules will be completed by last 2 months. Okay. Then here some other teacher will come. These 3 things I am going to cover. Then the other things like Jenkins, Maven, SonarQube, Nexus. These will be very small tools. The all 3 will be covered within 5 days. Jenkins will some more day. Then we will cover Docker. We will cover Kubernetes. और Docker के टाइम पे भी Jenkins का कुछ रहेगा. उसके बाद Kubernetes के रहेगा. Jenkins will come everywhere again. Then some one of the monitoring tool. So these will be covered later. So this is my part. I will cover. Then AWS, these 4. Then another teacher will be there. Currently, we have Om sir is the trainer. So I am trying to deploy some more teachers because subsequently we are going to have a multiple batches. Obviously, we will have 2 to 3 set of trainers for this. All the trainers are having at least 6 to 7 year DevOps in a DevOps profession experience, and they are having more than 10 plus year experience in the IT. Especially as I told, I have 14 plus. That's why. And this Linux is my core subject. When I started my career, I started my career from Linux. Okay. But here I will tell my story. I was in a company called Lakshya Solution. Lakshya Solutions Private Limited. Before going to this Lakshya Solution Private Limited, I was a trainer in Lakshya Center. Lakshya Training, you all know, right? Lakshya Training at IRCO Tower. So in this training center, I was working as a lab assistant under Sushant sir for C and Oracle. Then I started my career at Lakshya Solutions Private Limited, which is part of this Lakshya Training only. But this was in Bangalore. My boss name was T. Prabhakaran. He is a Chennaian. Chennai people normally don't like any Hindi people, even Indian को वो like नहीं करते. But that T. Prabhakaran was nothing. He was not like that. He was very kind-hearted person. He was my boss, but for first 6 months,
he given me a chance to learn Linux and work in Linux. But believe me, that time I don't know what I don't know. As I didn't know anything about Linux, and also, and that's why I could not able to search in the Google. मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को क्या पता नहीं, how can I search? तुमको अगर पता नहीं है कि आपको नमक पढ़ना चाहिए करी में, आप नमक सर्च कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं है. So I didn't know what I didn't know. That's why it was a very challenging moment for me when I was working with this person. So first 6 months gone with no input from my side. It was a biggest challenge for me, but this person was not agreed with me that actually what I was expecting, he should tell me ये सीखो आपको काम हो जाएगा. बट ये मुझे बोला कि तुमको लाइनक्स में काम करना है, तुम भाई कैसे काम करो. अरे मुझे ओनली लिनक्स टर्म पता था, ओनली लिनक्स, और कुछ टर्म बस. आई वाज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग. ये बंदा का पिताजी को हार्ट अटैक हुआ. ये गया 3 महीने छुट्टी पे. वो टाइम पे मैंने एंजॉय किया पूरा, क्योंकि मुझे हर दिन डांटता था. जिस दिन वो आएगा बोला, मैंने उसी दिन पेपर डाला डर के. 6 मंथ काम किया, नो इनपुट, बिकॉज ऑफ आई डोंट हैव नॉलेज. मैं दिल्ली गाली खा रहा था. ये 3 महीना जो गया मेरे लिए बन गया हनीमून पीरियड. ये जिस दिन 89 डे हो गया, 90 डे में आने के लिए ट्राई कर रहा था, मैं उस दिन पेपर डाला कंपनी में, क्योंकि उसका गाली मेरे को सहन नहीं होता. 30 लोगों का कंपनी था ओनली. वो 30 लोगों का कंपनी डांटता था, यू ओडिशा पीपल डोंट नो एनीथिंग एंड यू केम फॉर बीइंग ए सिस्टम इंजीनियर. ये जो बंदा जो प्रोडक्ट बनाया था ओरेकल टाइप का CSQL करके प्रोडक्ट बनाया था. आप सोर्सफोर्स में मैं आपको दिखाऊंगा. मेरा 16 साल का इस सोर्सफोर्स जो ओपन सोर्स का मेंबरशिप में हूँ. तो यहाँ पे ये CSQL प्रोडक्ट ये खुद ही बनाया था. इट इज काइंड ऑफ ओरेकल. मैंने को बोला था कि इसका कोड लिखने के लिए C एंड लिनक्स एंड जावा में, बट मेरे को C तो पता था, लिनक्स पता नहीं था. मैं बहुत बेकार परफॉर्मेंस कर रहा था. मैं 89th डे में निकला, पेपर डाला. मुझे मैनेजर पूछा क्यों छोड़ना चाहते हैं. मैं बोला नहीं, मेरे को जमता नहीं, मैं छोड़ दूंगा. जॉब वॉब कुछ मिला क्या? नहीं, मेरे को जॉब नहीं, फिर भी मैं छोड़ दूंगा. यार क्यों छोड़ोगे? मैं उनको फिर बताया प्रॉब्लम. ये बंदा हमारा उड़ीसा लोग को बहुत डांटता है. ये बंदे के साथ मैं काम नहीं करना चाहता हूँ. ये मेरे को और कोई टीम दे दो, वगैरह वगैरह वगैरह. यहाँ पे एक बंदा था, उसका नाम था जितेंद्र लेंका. मैं आपको क्यों ये स्टोरी बोलना बता रहा हूँ. जितेंद्र लेंका वाज माई कलीग. वो मुझे बोला क्या प्रॉब्लम तेरे को? मैं बोला ऐसे डांट रहा, तेरे को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है? वो बोला तुम मुझे कभी पूछा नहीं, इसलिए दैट इज अगेन योर प्रॉब्लम. If you didn't work me, they didn't ask me anything, how can I tell you? So he has told me how to write a small script, how to write a small shell script of only 5 to 6 lines. After that, I have started writing a script only, fast scripting. मैं बोला अरे मुझे पता नहीं कि क्या, मुझे पता नहीं. वो मुझे बताया कि तुमको पहले मैंने आज 5 कमांड सिखाता हूँ, आओ तो 5 कमांड को जाके गूगल चेक करो, आपको 1000 चीज मिलेगा. तो मैंने क्या किया था, 5-6 चीज सीखा था. उसके बाद 2-4 स्क्रिप्ट लिख दिया फटाफट 2-3 दिन के अंदर. ये बंदा थोड़ा लेट हुआ आने के लिए, और वो जो आया आफ्टर 90 डे रिटर्न, आई हैव रिटन ओनली 4 स्क्रिप्ट्स. बिलीव मी, ये बंदा आके इतना गुस्सा हुआ, मेरे को रूम पे लेके गुस्सा होके मेरे गाल में थप्पड़ लगाया, बहुत जोर से लगाया. आईटी में ऐसा नहीं होता है, बट वो मुझे शायद मेरे को वही जो थप्पड़ मुझे लगा था कि ये मेरा पिताजी का थप्पड़. देन आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई सेल्फ. और वो रोया, वो बंदा रोया मेरे लिए. बोला कि तू क्या कर रहे, 4 स्क्रिप्ट लिखा है 90 डे में. हाउ दिस कंपनी इज गोइंग टू गिव यू सैलरी? Already 6 months salary, you have taken another 3 months, 9 months salary, 10,000 into 9, 90,000 you have taken as a salary, and you have written only 4 scripts. How
you will survive because of me only, because वो बोला because of me only you survived here, please आपको सुधारो। मैं भी रोया उधर। मैं बोला कि ठीक है, मेरे को क्या कर सकता हूँ, मेरे को होता नहीं, मैं क्या करूँगा। वो मुझे एक ट्रिक सिखाया कि ठीक है, तुमको पता नहीं ना क्या क्या सीखना है, एक लिनक्स का बुक को डाउनलोड करो, एक लिनक्स का बुक को डाउनलोड करो, नहीं तो एक सेंटर है उसका नाम है उत्तरा, UTTARA, उत्तरा करके एक सेंटर है जहां पे ओनली ऑडियो सिखाया जाता है, लिनक्स का ऑडियो। मतलब एक रिकॉर्डर रहता है, उसके अंदर एक CD रहता है, तो एक रिमोट दिया जाता है, आप रिमोट को दबा के ट्रैक चेंज कर करके खाली ऑडियो सुनोगे लिनक्स का। अच्छा, मैं अगर आपको खाली ऑडियो सुनाऊंगा लिनक्स का, आप पढ़ सकते हैं क्या, अभी बताओ, गिव मी ए ट्रू रिव्यू। खाली ऑडियो बोलूंगा, मतलब मेरा वीडियो नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं आएगा, लैपटॉप इसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करूंगा, खाली बोलूंगा लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इतिहास सो एंड सो XYZ। आपका होगा क्या बताओ? नो सर। हाँ सर। ओनली ऑडियो। आप गूगल सर्च कीजिए, उत्तरा करके एक सेंटर था, उनका ऑडियो था, और वहां पे 1000 लोग सीखते थे पर डे जाके, 1000। वो टाइम में कोर्स भी ले रहा था 3700 रुपया एक ही मॉड्यूल, डेवलपमेंट मॉड्यूल के लिए, मैंने उसको सीख लिया। बट वहां पे मैंने कुछ भी समझ में नहीं आया, बट टर्मिनोलॉजी मुझे पता था कि लिनक्स, LS है, टेल है, ये सब। So now I found, now I knew what I didn't knew. I knew I have the list of things that I don't know. That's why मैंने आके गूगल किया। Believe me, और you believe or not, मैं आपको जाके, मेरे पास ऑलरेडी अभी भी कोड पड़ा है, वो कोड को आपको दिखाऊंगा मैंने कितना कोड लिखा हूं। पहला 30 डे में 30 स्क्रिप्ट, स्टिल दिस पर्सन वाज नॉट हैप्पी। उसके बाद कितना हो गया मेरा, 9 मंथ प्लस 30 डे, 10 मंथ हो चुका था। मैंने वो कंपनी में टोटली सर्वाइव किया 2.5 साल, मतलब 10 मंथ गया, और कितना हो गया, 12 6 18 12 4 18 20 मंथ। नेक्स्ट 20 मंथ पे I have written 1600 scripts। 20 months 1600 स्क्रिप्ट, मंथली कितना पड़ा अभी, समझ रहे हैं अभी? तो I have written 1600 scripts within next 20 months, and every script का लेंथ था 400 लाइन से ऊपर, 400 लाइन। सो मैं मेरा 2.5 साल में जितना कैरियर को सजाड़ा, जितना ठीक किया, जितना परफेक्शन बनाया, मैं उसका क्रीम खा रहा हूं अभी बैठ के। IBM पे जब जॉब कर रहा था, मैं जब चल के जाता था फ्लोर पे, मुझे लगते थे निहार आया नहीं बोलते थे, लिनक्स आया बोलते थे। That's why I told you last time, I feel with Unix, I sleep with Unix. So that is so, ये Unix मेरे को इतना बड़ा करके रखा है आज तक। आतिश सर के साथ मैं मेन ट्रेनर हूँ उसका। आतिश सर का जो मेन ट्रेनर जो है, लोगों को राम पढ़ा के सिविल इंजीनियर को IT इंजीनियर बनाना, मैकेनिकल इंजीनियर को IT इंजीनियर बनाना। मैंने जो दिन दिखा है, वो प्रभाकरण का 9 मंथ खा लिया, बिकॉज वो मुझे कुछ भी ट्रिक्स नहीं बताया। बट यस, वो हिडनली मुझे सिखाया, बोला कि ठीक है, ये बंदा के पास बहुत फियर फैक्टर है। बंदा खुद कुछ भी ट्राई नहीं करता है, यही बंदा खुद ही करके दिखाएगा। वो मेरे पीछे पड़ा था और मैं खुद करके दिखाया। बस थोड़ा मुझे बताया उत्तर आ जाओ बस, बट ये भी मेरे को पता नहीं था क्या करें, बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट आई डिडंट नो। तो वो स्टेट में मत रहे, थोड़ा आप खुद को उठाओ, थोड़ा खुद को उठाना पड़ेगा, और आपको हेल्प करने के लिए 1000 हैंड है। तो आज मैं तुम्हारे लिए आया हूं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैं बोला ना, मैं
डेटा इंजीनियरिंग का जो आतिश सर का जो औरंगाबाद में डेटा इंजीनियरिंग का बैच चलता है, वहां पे 80% आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स 280 स्टूडेंट्स आर नॉन आईटी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वगैरह वगैरह। पहले तो हम लोग कॉमर्स का भी बंदे को लेते थे, अभी नहीं ले रहा। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल 280, अनदर 20 ऑफ ओनली टेक्निकल, दैट इज आईटी स्टूडेंट्स, सीएससी एंड आईटी। ये अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, मैं आपको प्रूव कर रहा हूं क्यों। औरंगाबाद इज ए मैकेनिकल बेस एरिया, वहां पे ज्यादा मैकेनिकल कंपनी है, इलेक्ट्रिकल कंपनी है। उधर कॉलेज में इतना आईटी सीख नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली। और पुणे जैसे जगह उनके घर के पास जो लोग आते हैं पुणे में जॉब, जो आईटी का लोग रहते हैं उनको जॉब मिल जाता है, बट ये लोग को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लोग को उधर भरपूर कंपनी है। ये सारे लोग, ये जो 280 लोग है ना, ये जॉब वाले लोग हैं। ये लोग को 2 लाख 2.5 लाख पैसा मिलता है 2-3 साल तक। इसके बाद ये लोग यहाँ पे 3 साल बहुत लेबर करने के बाद पैसा नहीं बढ़ा, इसलिए यही सारे लोगों को हम लोग कन्वर्ट किए इसमें। हम बोले कि आपको जॉब देंगे। तो ये सोचो कि ऑलरेडी ये लोग जॉब में है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उनको आईटी पढ़ाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं, डे 1 में मैं टिक गया, आतिश सर मुझे अभी तक रखे उनके पास। आई एम द ओनली ट्रेनर, आई कंप्लीटेड 9 बैचेस। और उनके पास जो भी ट्रेनर्स आए हैं, कभी ट्रेनर छोड़ देते हैं, कभी आतिश सर बोलते हैं कि नहीं जमता नहीं, आप निकल जाओ। तो बट मैं अकेला ट्रेनर उनके पास अभी तक हूँ। मेरा ईमानदारी, मेरा ट्रेनिंग, मेरा लेबर, मेरा डेडिकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इज वेरी हाई। ही हैज सीन मी। अभी मैंने जैसे बोला, उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि चलो पुणे में भुवनेश्वर में एक सेंटर खोलते हैं, तो ही एग्रीड। देन दिस इज आवर प्रोडक्ट, भुवनेश्वर इज आवर प्रोडक्ट। ओके, भुवनेश्वर is my own request, okay, to Atish sir, please open a center at Bhubaneswar so that people will be get benefited. फिर आप बोले होंगे सर उधर तो डेटा इंजीनियरिंग था, इधर डेटा इंजीनियरिंग क्यों नहीं खोले? डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स बहुत लंबा होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर उसमें होता है, और पैसा तो दोनों में सेम है, और थोड़ा टाइम लगता है डेटा इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए, थोड़ा प्रोग्रामिंग उसमें ज्यादा है। बट उड़ीसा में जितना लोग को मैं दिखा हूँ, पहला बैच अगर मैं ज्यादा प्रोग्रामिंग के शुरू करता हूँ, अगर लोग थोड़ा फेल हो जाएंगे, डर था मेरा। मैं बोला नहीं, जिसमें ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है मैं उसको लॉन्च करूँ। तो ये डेवऑप्स है, जो कि मैंने खुद ही डेवऑप्स में सिंस लास्ट 4-5 साल हो गए काम कर रहा हूँ मेरा। ओके, तो दिस इज द रीजन आई ओपन डेवऑप्स एंड आई एम ऑलवेज द फर्स्ट ट्रेनर ऑफ एबीडी। एबीडी का फर्स्ट ट्रेनर मैं ही होता हूँ। कोई फास्ट ट्रेनर क्या होता है ना, लिनक्स होता है। आपको बता देता लिनक्स क्यों फास्ट है ना, लिनक्स क्यों है फास्ट, मैं आज पढ़ाऊंगा व्हाई लिनक्स इज द फर्स्ट मॉड्यूल। कंप्यूटर का मैंने जो बेसिक आपको दिया था, इफ इट इज द हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के ऊपर जो लेयर होता था वो ओएस लेयर होता था। अगर ओएस नहीं है, ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर अगर ओएस नहीं है, ये हार्डवेयर काम नहीं करेगा। अगर ओएस इज कंप्राइज ऑफ, और ओएस इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज कर्नेल प्लस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये ओएस पे अंदर कर्नेल रहता है प्लस सम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रहता है, दोनों मिलके जब ये हार्डवेयर के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं तब मेरा सिस्टम खुल जाता है। इस सिस्टम को बोलते हैं इट इज ए कंप्लीट सिस्टम। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक रहता है सेल, जो कि यूजर को बाहर दुनिया में जो लोग रहते हैं, जैसे कि हम लोग, वी आर द यूजर, हार्डवेयर एंड कर्नेल both know only electronic signal like 1 or 0, but this user knows English like language, mango, tango, sima, rima, tima.
So user could not able to interact with this operating system because of the kernel. Again, some application program came which makes easy to understand the human language by the system and to understand the this to convert the this machine language into user language, so that user could able to interact with the system, which is the cell. क्लियर है अभी सब लोग? मैंने इसके बताया था. Yes, sir. तो मैंने अभी आपको एक दिखाता हूं, ये जो this is the thing that I was telling about. So let me show my screen so that you will understand. So everybody is able to see my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. तो आज आई टोल्ड हार्डवेयर खरीदा था, हार्डवेयर के ऊपर कर्नेल इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली. कर्नेल एंड दिस लेयर, ये जो व्हाइट लेयर एंड ग्रे लेयर मिलके, जो देखिए ये बास लिखा है ना, बास मोर देन कर्नेल. सो दिस इज द ग्रे एरिया, दिस एरिया, ओके, दिस एरिया, ये ग्रे प्लस ये जो व्हाइट, ये दोनों एरिया मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नेल आता है, प्लस ये सेल आता है, प्लस ये कमांड्स कंप, सीपीपी, एसएच, सीएसएच, केएसएच, बास. These are one small application programs along with cell. Then the outermost layer, that is called application program, mail, FTP, DBMS. यहाँ पे यूजर बैठता है, यूजर लिखता है मेल, यूजर करता है FTP, यूजर डेटाबेस में डेटा स्टोर करता है, यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाता है. सो यूजर इज इन द लास्ट ग्रे एरिया, आउटरमोस्ट ग्रे एरिया. तो यूजर जब ये कर्नेल के पास आना चाहता है, बीच में सेल उसको हेल्प करता है. सो सेल इज द इंटरप्रेटर और इट इज द इंटरमीडिएटर बिटवीन द सिस्टम बोलते हार्डवेयर एंड कर्नेल, बिटवीन द सिस्टम एंड द यूजर, which takes the input from the user and gives the output to the user by processing your request with the help of your system. So मैंने ये सारी चीज लिखा हूं यहाँ पे. हार्डवेयर क्या होता है, कर्नेल क्या होता है, सेल क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है. Although these are the theory, you guys should remember the things by understanding. So हार्डवेयर सिंपली सिस्टम, सीपीयू, रैम, ये सबको मिला के हार्डवेयर होता है. हार्डवेयर को जब तक कर्नेल और एक सॉफ्टवेयर नहीं डालते, तो पहला सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है, दैट इज योर कर्नेल. बट कर्नेल एंड हार्डवेयर मिला के सिस्टम तो बन जाते हैं, बट दे आर नॉट द कंप्लीट सिस्टम टू हेल्प द यूजर्स. यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए यूजर का इंग्लिश लैंग्वेज को कर्नेल के पास पहुंचाना पड़ेगा. तो कर्नेल के पास पहुंचाने का काम सेल का होता है. सेल क्या करता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम यूजर का लेता है, बीच में उसको चेक करता है कि वो इधर इट इज ए प्रॉपर मतलब इंस्ट्रक्शन टू माय सिस्टम और नॉट. सो अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है तो उसको कर्नेल को देता है काम करने के लिए. कर्नेल उसको काम करके फिर उसको सेल को देता है. सेल उसको अगेन कन्वर्ट करता है ह्यूमन लैंग्वेज में, फिर ह्यूमन लैंग्वेज को देता है. फाइनली ह्यूमन क्या करता है, अंडरस्टैंड कर पाता है कि यस, आई हैव रिक्वेस्टेड so and so and I am getting my right answer. So this is your Linux architecture. And सिस्टम में पहले अगर कर्नेल एंड सेल होता है, these are part of the operating system only. अभी तक मैंने नोटपैड के बारे में नहीं बताया, अभी तक मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में नहीं बताया, जावा के बारे में नहीं बताया. all these things, जावा, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, IGI game, these all are application softwares. Before installing these application software in your system, your main software should be operating system. So आपका operating system पहला मॉड्यूल होता है Linux is a operating system. Because Linux is a operating system, your पहला मॉड्यूल is your first module is the operating system only, and
and Linux is a operating system. Getting me? Why Linux? Getting me? Yes, sir. Then हम लोग फिर लिनक्स पास आएंगे. पहले थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. मैंने पहले इसको दिखाया था, बट हिस्ट्री अभी दिखाना पसंद करूंगा. मैं पहला ये मैं स्लाइड में लिखा था, लिनक्स इज नाइदर यूनिक्स नॉर डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स. लिनक्स यूनिक्स नहीं है और यूनिक्स से डिराइव नहीं हुआ है, तो क्या है पढ़ेंगे. सो पहले हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स हो जाते हैं. तो यूनिक्स 1964 में बेल लैबोरेटरी में न्यू जर्सी सिटी में बेल लैब करके एक लैब था जहां पे सी डेवलप हुआ था, वहां पे यूनिक्स डेवलप हुआ. 1964 को डेवलप करते करते 69 हो गया. उसके बाद ये लोग फेल हो गए, बोले कि नहीं, उनका मिशन फेल हो गया. वो लोग जो टारगेट था, टारगेट फिलअप नहीं कर पाए, बोले कि हमारा काम बहुत हो गया, अभी हम लोग फेल हो गए, चलो विथड्रॉन. दे हैव विथड्रॉन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. यूनिक्स को फेल कर दिया, यूनिक्स को डेवलपमेंट कर ही नहीं पाया. In that particular Bell Lab, there are two persons who are working. One is Dennis Ritchie, another is Ken Thompson. These two persons were the two friends, and they asked this Bell Lab, "You failed. We all failed. It's okay, but can you please give us some chance to see that particular code so that we will think about that and we will do some R&D. Maybe it will be again success by us, but not officially, non-officially." They have taken that 19 that taken all the code of this particular Unix, but उनको बोला गया, उनको तुम कोडिंग अभी यूनिक्स ले रहा है, ये यूनिक्स फेल हुआ है, तुम कोड लो, अगर कोड सक्सेस होता है उसके कुछ अलग नाम दो. देखिए डेनिस रिची और केन थॉमसन, they again started working in different way. Finally they got success and they given the name as Unix, UNICS, not Unix. उसका नाम यूनिक्स हो गया, UNICS हो गया, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस. बट ये करने के बाद उसको फ्री कर दिया. फ्री का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैंने चावल को फ्री कर दूंगा, लोग आके लेके खा जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट? चावल फ्री, आलू फ्री. फ्री का माल ना, लोग बोलते हैं कि फ्री का माल दरिया में डाल. मतलब है कि मैं जो फ्री जो चीज को बांटूंगा, लोग जरूरत से ज्यादा लेके फेंकेंगे, लालची से ले लेंगे. जैसे कि आप लोग दिखे होंगे बुफे सिस्टम जहां पे होता है, मन में ऐसा डर आता है कि अरे मैंने चिकन चिल्ली लेता हूं, बट नेक्स्ट टाइम आऊंगा खत्म हो जाएगा, तो मैं ज्यादा ले लूंगा, उसके बाद ज्यादा लेता हूं, मेरा मन भर जाता है, उसके बाद फेंकता हूँ 4-5 पीस. तो जहां पे फ्री मिलता है उधर फेंकना पड़ता है. पुणे में एक ऐसा होटल है, जो होटल बोलता है कि तुमको 150 रुपया में सब कुछ, तुम कितना भी खाओ चलेगा, अगर तुम्हारा कुछ भी बच गया वो 50 ग्राम के बेसिस के ऊपर वेट होगा. अगर 50 ग्राम के ऊपर ज्यादा है, आपको 150 रुपया फाइन देना पड़ेगा. तो वही सिस्टम इज गुड गाइस. फ्री अच्छा है या नॉट फ्री वाला अच्छा है? फ्री होगा तो अगर मैंने ऐसा अगर फ्री कर दूंगा, मेरा दुनिया डूब जाएगा, कब पता नहीं चलेगा. सारे लोग फेंका फेंकी सब कुछ करेंगे. ऐसे दिल्ली में एक सेंटर था जहां पे बहुत सारे लोग काम करते थे, बट वो गवर्नमेंट का ऑफिस था. वहां पे 7 बजे के बाद जो बंदा काम करेगा और बंदी काम करेगी, इनको एक प्रोविजन था कि तुम्हारा पूरा परिवार के लिए ताज होटल से खाना मंगा जाएगा, वो खाना को लेके जाओगे. ताज होटल में 4 पीस चिकन चिल्ली का कॉस्ट होता है 850 रुपया आज का बाप. सोचो कि मेरे घर पे अगर 5 लोग हैं, तो 5 लोग के लिए मैंने 3-4 हजार का बिल आएगा एटलीस्ट. और वहां पे कम से कम 600 to 700 लोग काम करते थे. उसमें आउट ऑफ 50%, आउट ऑफ 700, 50% पीपल वर वर्किंग आफ्टर 7 PM. ओनली आधा घंटा कर ले रहते थे. बिकॉज ऑफ क्यों? हमको फ्री खाना लेके जाना. मोदी जी आके वो सबको बंद किया. बोले कि तुम अगर 7 बजे के काम बाद करोगे, प्राइवेट ऑफिस में ओनली 200 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, तुमको 200 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा.
अभी सब कुछ सिस्टम हो गया। एक रात को करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता था ये लोगों के लिए अननेसेसरीली, बिकॉज फ्री का माल था। ठीक है, चलिए चलो मैंने वो नहीं, ये कोई हार्डवेयर फ्री नहीं है, ये सॉफ्टवेयर फ्री है। सॉफ्टवेयर बोल तो टेक्नोलॉजी को फ्री कर दिए, कहीं पे रख दिए, उसको बोले कि तुम लोग कोई भी यूज करो, चलता रहेगा फ्रीली। सो सॉफ्टवेयर को जब कोई फ्री यूज करता है, सॉफ्टवेयर खत्म नहीं हो जाता है। ज्ञान को फ्रीली बांटने में कभी ज्ञान खत्म नहीं हो जाता है। तो ये उस टाइप का चीज है। तो यूनिक्स को ये फ्रीली बांटे ताकि ये ज्यादा पब्लिश हो जाए, ज्यादा पॉपुलर हो जाए। जैसे कि आपको पता होगा ओला कैब ने 3 साल पहले 100 रुपया में 12 किलोमीटर देता था। आज 6 महीने एयरपोर्ट को आया, बम्मीखाल से 7 किलोमीटर दूर के लिए 243 रुपया दिया। तो पहले लोगों को फ्री दे के मजबूरी बनाया। तो ये मजबूर किया लोगों को कि भाई तुम लोग फ्री लेके लोगों को इसको पॉपुलर कर दिया। नाउ यूनिक्स करके जो चीज है ज्यादा पॉपुलर होने के कारण 1975 को ये लोग फ्री किए। फ्री करने का मतलब और भी एक चीज बोलता हूँ। अच्छा, मैं अगर फ्री ले रहा हूँ, राम अगर फ्री ले रहा है, श्याम अगर फ्री ले रहा है, 1000 लोग अगर फ्री ले रहा है, 5 लोग तो उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ना। नॉर्मली टेंडेंसी मैं आपको पूरा इकोसिस्टम के साथ पढ़ाऊंगा सब कुछ। हम लोग कभी भी सोचेंगे नहीं या कभी मतलब जानेंगे नहीं कि हम लोग को पढ़ रहा है करके। हर एक चीज को हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे इकोसिस्टम के साथ। जैसे कि आप जाते हैं कोई तिरुपति मंदिर में आपको भगवान फ्री मिल रहा है, आपको उधर का तुलसी, उधर का प्रसाद, उसका सब कुछ एकोमोडेशन बहुत सस्ते में मिल रहा है, राइट। आप खुश होके क्या करते हैं, हुंडी में 1000 रुपए डालते या नहीं डालते? यस। सो 1000 लोग अगर जाते हैं, 50 लोग हुंडी में डालते हैं। और वहां पे क्या तो खर्च होता है, ठीक है, लड्डू खाने के लिए खर्च होता है, लड्डू को वो खर्च करते तो 50 रुपया मिलते, बट यहाँ पे कुछ खर्चा ही नहीं है, ये फ्री डाल दिए। 100 लोग अगर फ्री यूज किए, 10 लोग कंट्रीब्यूशन भी किए। तो ऐसे यूनिक्स का जो UNICS जो था उसका कोड ऐसा बढ़ गया, लोग पढ़े, नॉलेज लिए, उसके बाद नॉलेज दिए भी उसके अंदर। तो नया जो फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, जितने सारे फ्री सॉफ्टवेयर है उस पे वो लोग उनका फ्री के लिए नहीं करते, वो तुम्हारा चैरिटी नहीं करते। उनका पता है अगर 100 लोग मेरे को यूज करेंगे, 5 लोग मुझे देंगे। यूज करने में मेरा लॉस नहीं होगा, बट 5 लोग देने में मेरा बढ़ेगा। क्लियर? सॉफ्टवेयर का बात कर रहा हूँ, कोई आलू का नहीं बोल रहा। आलू में तो 100 जाएगा, 5 जाएगा तो मेरा लॉस है ना। बट ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को 100 लोग यूज किए, 5 लोग दान किए, तो उसका सॉफ्टवेयर का वॉल्यूम बढ़ता गया, सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी बढ़ता गया। तो वंस दैट फंक्शनैलिटी इंक्रीज्ड, 1975 में एक स्टेबल वर्जन आया, दैट इज कॉल्ड यूनिक्स V6। ये लोग यूनिक्स नहीं दे सकते थे, ये लोग यूनिक्स V6 दिए उसका नाम। क्लियर? अभी यहां तक स्टोरी समझा? अच्छा लगा? यस सर। तो नाउ 1975 तक इनके पास स्टेबल वर्जन आ चुका था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है 2001 तक, सॉरी 99 में हमारा जो सुपर साइक्लोन आया था, 97 का बात कर रहा हूं, मेरा मैट्रिकुलेशन था 1997 पे मैंने मैट्रिकुलेशन कवर किया था। मेरे गांव पे एक बिस्किट मिलता था, उसको बोलते अम्प्रो बिस्किट। एक चॉकलेट मिलता था, उसको बोलते कांच का चॉकलेट बोलते थे। हम लोग को पता नहीं था, कांच चॉकलेट बोलते थे, नहीं तो अम्प्रो बिस्किट बोलते थे, नहीं तो लेमन चॉकलेट बोलते थे। इतना ही था भाई, चॉकलेट वो टाइम पे फेमस नहीं हुआ। आफ्टर 2000 जब मैंने भुवनेश्वर या कटक या कहीं पे आया, मैंने सालेपुर में +2 कंप्लीट किया, उसके बाद कटक आया मेडिकल प्रिपरेशन होने के लिए। मेरा मेडिकल अच्छा नहीं हुआ, मैं इंजीनियरिंग प्रिपेयर हुआ, इंजीनियरिंग भी अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद BCA करके MCA किया, मेरा भी सक्सेस। सो वो जो मैंने मेडिकल प्रिपेयर हो रहा था, वो टाइम में कटक में आके दिखा रहे, मैं बोलता हूँ भाई बिस्किट दो, वो मुझे 5 बिस्किट दिखा रहा है। चॉकलेट दो, वो मुझे 8 चॉकलेट दिखा रहा है। अरे इस टाइप का चॉकलेट क्या है ये सब? तो एक टाइम आया कि मेनी कंपनीज
taken the how to taken the formula, how to create a chocolate, how to create a biscuit, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चेंज करके खुद का कंपनी बना के दूसरा ये उसका बिस्किट बेचा, वो बिस्किट बेचा। अभी कम से कम 1000 प्लस कंपनीज आर सप्लाइंग द बिस्किट्स and every company is having their 1000 type of biscuit. Getting me? So now just देखो, एक अम्पर बिस्किट था, एक कांच का चॉकलेट था, उसका फॉर्मूला को लेके 50 लोग 50 कंपनी बना के 50 टाइप का बिस्किट बेच रहा। लाइक दिस यूनिक्स फ्लेवर को ये जो 1975 में जो यूनिक्स का कर्नल बना था, उस कर्नल को इतने सारी कंपनी ने क्या किया, कोड को, वो भी फ्री था, फ्री कोड को लिए उसमें छोटा मोटा चेंज करके आईबीएम बोला कि हाँ मैं मेरा प्रोडक्ट को बनाया, ये प्रोडक्ट यूनिक्स से थोड़ा अच्छा है, उसको लेने में तुमको ये फैसिलिटी मिलेगा, तो तुम उसको लेना चाहिए और उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। सॉन भी बोला मैं भी वही करूंगा, एप्पल बोला मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ, एचपी बोला मैं भी ऐसा करता हूँ। ऐसे अभी दुनिया में सबसे बड़ा यूनिक्स जो है 4 कंपनी है, आईबीएम, एआईएक्स, सन सोलारिस, एप्पल मैक ओएस, then HP UX. These are the 4 Unix companies who are, मतलब 4 companies who developed their Unix. अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम था क्या था, ये लोग क्या फायदा किए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो था ये कम्युनिटी वर्जन था, मतलब फ्री है तो इंटरनेट में एक्सेस था, लोग जाते थे खरीदते थे, जब उसको कुछ इशू होता था वो वेट करके रहते थे कि मुझे कोई हेल्प करेगा, बिकॉज ये फ्री था, राइट। मैं अगर आलू आपको फ्री दूंगा, आलू में कुछ ऐसा रटन आलू मिला, आप कंप्लेन कर सकते क्या? बोलो नहीं। बट मैंने अगर आपसे 1 ही रुपया लिया, आप कंप्लेन करोगे ना भाई आलू कट रटन आलू है, लाइक दिस। ये लोग बोले कि भाई तुम लोग जो यूनिक्स V6 को यूज कर रहे हैं ये फ्री है, यहाँ पे कुछ इश्यू आता है तो तुम लोग रिजोल्यूशन के लिए वेट करके रहते हैं, तुम तब तक तुम्हारा काम अटक के रहता है, शो स्टॉपर बन जाता है, तो यू कुड नॉट एबल टू फिनिश ऑल ऑफ योर वर्क व्हिच इज डिपेंडेंट अपॉन दिस V6. Now if you are purchasing the same Unix, but not it is Unix, it is AIX, you are purchasing this AIX, which is combination of this Unix V6 with some added advantage. हम लोग आपको सर्विस भी देंगे, एडेड एडवांटेज भी देंगे। सो ये लोग क्या किए ना, एंटरप्राइज वर्जन निकाले। सो एंटरप्राइज वर्जन इज नथिंग बट इट इज सर्विस बेस्ड, इट इज द फ्री वर्जन along with some extra feature with the service. मतलब मैंने ऐसे रटन आलू नहीं दूंगा, मैंने आलू दूंगा, मेरा रटन अगर आलू होता है तुम अगर रिटर्न करोगे मैं तुमको नया आलू दूंगा। सो यहाँ पे ये बोल रहे कि तुम लोग को अगर यूनिक्स से कुछ प्रॉब्लम होता है, टेक्निकली कुछ इश्यू होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है कभी गड़बड़ हो सकता है, बट हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट टीम रहेगा। तो टेक्निकल सपोर्ट टीम प्लस यूनिक्स V6 का फीचर प्लस सम एडवांस फीचर हम लोग दे रहे हैं, ले लो हमसे। नाउ IBM became popular, Sun Solaris became popular, Apple become popular, HP become popular, जिसको जो चाहिए लो। अभी कोई बोल रहा है मैं ओरियो खाऊंगा, कोई बोल रहा है मैंने किटकैट खाऊंगा, खाते ना। तो किटकैट और ओरियो में जो डिफरेंस है यहाँ पे भी वही टाइप का डिफरेंस है। समझ में आया? क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? जी सर। Yes, sir, clear. ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा थोड़ा चेंज करके ये लोग बेचने लगे, ये लोग का पैसा भी आया और ये लोग क्या कर रहे हैं ना, लोगों को सर्विस भी दे, लोगों भी खुश, ये भी खुश। ठीक है, जिसके पास पैसा है ये 4 को लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है फ्री को लेगा। अच्छा तुम्हारे पास पैसा नहीं तो फ्री को लोगे, प्रॉब्लम होगा तो तुम ही रिजॉल्व करो, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो ये लोग रिजॉल्व करेंगे। हाँ, सिक्योरिटी, जो प्रोडक्ट आप बना रहा है, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहा है, इनके ऊपर डिपेंड करके ऑब्वियसली ये लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, मतलब आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये लोग ठिका लिए हैं। बट यहाँ पे आपको गारंटी नहीं है whether your product is going to be stable or not, because you are depending upon the free software. But still free software are good up to 99%. 1% के लिए मैंने इनके पास इतना पैसा क्यों दूं? 50%
startup company, small companies are depend upon this free software. Nowadays, in our Pune, there is a city called Banner City and Aund City. This Banner and Aund City is consisting around 500 companies. Out of 500 companies, 400 companies are dependent upon the free software. ठीक है? Because उनको इतना कुछ सिक्योर नहीं, जरूरत नहीं है. कल सॉफ्टवेयर उड़ गया तो ये लोग फिर से यूनिक्स को इंस्टॉल करके फिर से उस सॉफ्टवेयर का बैकअप लेके रखे, फिर इंस्टॉल करके चलाएंगे. बट सोचो आप एक आरोग्य सेतु जैसा एप्लीकेशन बनाया, अमेज़न जैसा एप्लीकेशन बनाया, HDFC बैंक एप्लीकेशन बनाई, आप इनके ऊपर बिलीव करोगे क्या? करोगे क्या? No. आप ये लोगों का सर्वर, ये लोग का लिनक्स का यूज करो, यूनिक्स का यूज करोगे. ठीक है? So now you are getting my point. Till this Unix was there, but Unix was only server version. इसको स्टूडेंट यूज कर सकता है, बट ये लोगों का स्टूडेंट को यूज करने का औकात नहीं है, क्योंकि 2-3 लाख रुपया पड़ता था ये ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए. अच्छा, बीइंग ए स्टूडेंट तुम 2-3 लाख इन्वेस्ट करोगे क्या? नो, राइट? तो यही है. बट ये ब्लैक एंड व्हाइट था, कमांड लाइन ऐसे था. मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट कैसे होता है. ऐसे था. ये सारे आपको ऐसा एक स्क्रीन मिलेगा. आपको डेट दिखना है, देखो डेट दिखना है, डेट कमांड लगाओगे. कैल दिखना है, कैल लिखोगे. लिस्ट ऑफ फाइल दिखना है, ls लिखोगे, तो ऐसे फाइल दिखता है. अच्छा, आपको ऐसे फाइल अच्छा लग रहा है या ऐसे अच्छा लग रहा है? कौन सा अच्छा लग रहा है? फाइल लिस्टिंग वेबसाइट देखो, ये सारे फाइल आपको ऐसे दिख, राइट वन, राइट? So right one is the GUI, left one is the command line interface, CLI. ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी इन ग्राफिक्स मोड. नीला, लाल, काला, पर यहाँ पे सब कुछ काला एंड ब्लैक एंड व्हाइट. क्लियर? सो अभी के लिए मैंने इतना बता रहा हूं कि ये था ब्लैक एंड व्हाइट. यूनिक्स, पूरा यूनिक्स, चाहे V6 जो भी हो, इतना यहाँ तक थे. ऑल आर ब्लैक एंड व्हाइट. क्लियर? Yes. कमांड लाइन, आप ऐसा डेट लिखोगे, डेट दिखेगा. अभी देखो इधर फायदा क्या हो रहा है. मैं डबल क्लिक किया, मेरा फोल्डर खुलता है. डबल क्लिक किया मैं क्या, मेरा PDF भी खुलता है. तो सेम डबल क्लिक नॉलेज को लेके मैंने सब कुछ कर पा रहा हूं ना. बट यहाँ पे आपको कैलेंडर के लिए कैल सीखना पड़ेगा, डेट के लिए डेट सीखना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ फाइल दिखने के लिए LS सीखना पड़ेगा, कौन सा यूजर दिखने के लिए हु आम आई सीखना पड़ेगा. दिस इज कमांड लाइन. सो इतने सारी चीज को याद रखना पड़ता था. बिकॉज ऑफ दैट यूनिक्स वाज नॉट दैट मच पॉपुलर. ब्लैक एंड व्हाइट सर्वर वर्जन अच्छा सिक्योरिटी देता है, इसलिए लोग उसको यूज करते थे कंपनी में. बट लिनक्स आया 1991 पे. एक बालक थे, उस बालक का नाम था लिनस टर्वाल्ड, LINUS, लाइनस टर्वाल्ड. दिस बालक 1991 पे इस यूनिक्स V6 को पढ़ा यूनिक्स V6 प्लस. किसका पढ़ा और किसका पढ़ा ना? एंड्रयू टैनेनबाम करके एक बंदे थे जो साइंटिस्ट थे. वो बच्चे लोग के लिए एक मिनिक्स करके एक सॉफ्टवेयर बनाए थे. बच्चे लोग के, छोटे बच्चे के लिए, ऐसे वो गेम खेलने के लिए, छोटा मोटा कुछ ऐसा पिक्चर बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए. बहुत ही बेकार सॉफ्टवेयर था वो टाइम पे. बस छोटे बच्चे लोग को कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता था. तो मिनिक्स करके एक स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एंड्रयू टैनेनबाम दैट टाइम. सो अभी यूनिक्स, ये लिनस टर्वाल्ड ने एंड्रयू टैनेनबाम को बोले कि भाई तुम्हारा कोड दे सकते क्या. तो उनका कोड को पढ़े और ये यूनिक्स V6 का कोड को पढ़े, मिला के जो पढ़ के बनाए. देखो मैंने फिजिक्स से पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा और एक साइंटिस्ट बना. मैं ऐसा बोल सकता मैंने, मेरा साइंस नॉलेज डिराइव हुआ है लिनक्स से? नो. मतलब फिजिक्स से? नो. मैंने एक नया कुछ बनाया.
देखो पढ़ के पढ़ाता हूँ, बट मैंने कुछ अलग तरीका बनाया. आई एम नॉट डिराइव्ड फ्रॉम फिजिक्स, आई एम नॉट डिराइव्ड फ्रॉम केमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ आई एम रीडिंग दिस थिंग्स. सो मैं फिजिक्स नहीं हूँ, मैं केमिस्ट नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ. मैं फिजिशियन नहीं हूँ, मैं केमिस्ट नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ. आफ्टर रीडिंग द थिंग्स आई बिकेम ए साइंटिस्ट. सो लाइक दिस लिनस टॉर्वाल्ड यूनिक्स का कोड पढ़े एंड इनका पढ़े, टेनेनमन का पढ़ के रिसर्च करके खुद का सॉफ्टवेयर बनाए. दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड लिनक्स. क्लियर एवरीबॉडी? सो लिनक्स इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स. ये खुद कोड पढ़ के उनका दिमाग को लगा के नया नया कोड लिख के, डिराइव अगर होता था उसका कोड को कॉपी करके पेस्ट करता था, उसमें नया कुछ कोड, जैसे कि ये लोग किए थे. ये लोग क्या किए थे, यूनिक्स का B6 का कोड ले लिए, छोटा मोटा चेंज करके सिक्योरिटी फीचर ऐड करके बेचने लगे. ये लोग कॉपी किए, मतलब डिराइव किए, बट ये लिनक्स टोटली डिराइव नहीं हुआ है. ये खुद का कोड स्क्रैच से लिखा है. सो क्रिएटेड हिज ओन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड Linux on 17th September 1991 and made it free for the world, and it became so popular. Everybody is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 91 को ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बन गया. फिर क्या करेंगे, उसको पॉपुलर कैसे करेंगे? फ्री तो कर दिया, ठीक है, बहुत कुछ चीज तब तक फ्री हो गया था, फिर इनको क्यों लोग दिखेंगे? एक 1995 को एक मोमेंटम था, जैसे कि आपका बुक फेयर होता है. बुक फेयर में आप लोग जाते हैं बुक खरीदने के लिए ताकि डिस्काउंट मिलेगा, बट वहां पे जो लोग बुक लेके आते हैं, वहां पे बहुत सारी न्यू पब्लिकेशन, अच्छा प्रिंटिंग के लिए, अच्छा क्वालिटी राइटिंग के लिए, उसका कंटेंट के लिए उधर पॉपुलर हो जाते हैं. दैट्स द रीजन दे आर कमिंग, यू आर कमिंग. वो उसको बोलते हैं कि बुक फेयर. तो लाइक दिस 1995 को ऐसे सारे फ्री सॉफ्टवेयर वाले मिलके एक मोमेंटम शुरू किए थे. उस मोमेंटम काइंड ऑफ फेयर था. उसको तो फेयर, अभी तुमको एक जगह लेके फेयर बनाते ऐसा कुछ नहीं है. वो एक ऐसा इंटरनेट में हो या कहीं पब्लिश किए कि हम लोग इतने सारे मिलके कुछ कर रहे हैं. वो डिजिटल मार्केटिंग तो वो टाइम में नहीं था. ऐसा पॉपुलर करने के लिए टीवी में आर दिए होंगे कि इतने सारे फ्री सॉफ्टवेयर. एक मोमेंटम चल रहा था. वो मोमेंटम पे ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर दुनिया में आए थे. अच्छा, ये लिनक्स टर्बाइन उधर गए थे. वो दिखे कि कुछ सॉफ्टवेयर जो कि मैं मेरा लिनक्स के साथ ऐड कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं GNU सॉफ्टवेयर. वो क्या किए ना, उनके वो जो कर्नल बनाए थे, उस कर्नल के साथ ये फ्री सॉफ्टवेयर से कुछ लेके, क्योंकि फेयर पड़ा था, राइट? फेयर मतलब इट्स ए वर्चुअल फेयर. वर्चुअल बोले तो मतलब तुम्हारी जगह में, मेरे जगह में, ऐसे हम लोग हल्ला कर रहे हैं कि ऐसे एक फ्री सॉफ्टवेयर है, मैं ये सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, डिस्कशन चलता रहता है. तो आपस में सब लोग सबको पहचानते हैं. उसके बाद फिर पॉपुलर बन जाते हैं. फिर ये बोलता है अरे तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर अच्छा मेरे ये में दे दो, मैं लगा सकता हूँ. हाँ लगा सकते हैं. तो ऐसे लगा के ये लोग क्या कर दिए ना, लिनक्स कर्नल के साथ GNU सॉफ्टवेयर को मिला के बनाए लिनक्स OS. लिनक्स कर्नल को GNU के साथ मिला के बनाए लिनक्स OS. सो कर्नल इज ए पार्ट ऑफ लिनक्स OS. क्लियर? सो नाउ लिनक्स यहीं पे जब OS बन गया, तब मैंने इधर आता हूं, आपको अभी इधर बताऊंगा. ओके, देखिए लिनक्स अभी OS बन चुका है. लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, ये तीनों अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर OS. क्लियर? वन इज विंडोज, जो कि आप लोग के पास, सबके पास है. सर हमारे पास तो विंडोज है, आप लिनक्स पढ़ाओगे, हम कैसे सीखेंगे? दिखेंगे ना, आएंगे उधर पर. तो विंडोज आप लोग पढ़े, हम लिनक्स आपको पढ़ाएंगे. क्यों पढ़ाएंगे? धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे जब हम लिनक्स का फीचर पढ़ेंगे. बट अभी के लिए मैं लिनक्स पढ़ा रहा हूं. लिनक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज. तो आप लोग विंडोज यूज करते हैं, मैं लिनक्स यूज करता हूं. मैं आपको बोल रहा हूं, प्रमोट कर रहा हूं, लिनक्स पढ़ो. क्यों पढ़ेंगे बाद में बताएंगे, बट अभी लिनक्स को सीखो पहले क्या है. व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक योर विंडोज. ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. Within that Linux operating system, there is a Linux kernel.
एंड मैंने ये कर्नेल के पास पहले जाता हूं. कर्नेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मे बी इट इज विंडोज, मे बी इट इज लिनक्स, मे बी इट इज यूनिक्स, मे बी it is Solaris, maybe it is Mac. These are the 5 operating systems are popular, but most popular is Linux, Unix, and Windows. It may be what is, it may be Unix, it may be Linux, it may be Windows. हर एक के पास एक कर्नेल रहता है. कर्नेल इज द हार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हार्ट होता है, हमारा बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है, हार्ट बीट बंद हुआ, बंदा गया परलोक. हार्ट बीट चल रहा है, बंदा जागृत है, बंदा जीवित है. सो हार्ट बीट के ऊपर डिपेंड करता है. तो कर्नेल इज द हार्ट ऑफ दिस होल ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये हार्ट का काम क्या है ना, ये आईओ मैनेज करता है. जो इनपुट आता है कोई यूजर से, कोई आउटपुट को यूजर के पास भेजना है, ये सबको मैनेज करता है कर्नेल. तो आईओ मैनेजमेंट, देन प्रोसेस मैनेजमेंट. जो इनपुट आया उसको प्रोसेस करना, और चीजों को समझना, उसके ऊपर काम करके फाइनल प्रोडक्ट बनाना और आउटपुट बनाना, ये सब होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का. तो कर्नेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट. कर्नेल इज responsible file management also. So everything that system knows like 0 or 1, human knows like ABCD 1 2 3. तो वहां पे जो आपको आइकनिक फॉर्मेट में देता है, आप डबल क्लिक करने में फाइल खुल जाता है. सो फाइल को मैनेज क्या होता है इसको. तो दिस सेम थिंग लाइक फाइल मैनेजमेंट इज आल्सो that kernel is also responsible for file management. Then kernel is also responsible for memory management. आप अभी सिस्टम खोले, सिस्टम खोलने के बाद यहाँ पे जो डबल क्लिक करते हैं, ये डबल क्लिक आपको इधर आइकन के हिसाब दिखता है, बट वंस यू आर डबल क्लिकिंग, दिस इज इन रैम पूछता है हार्ड डिस्क को, हे हार्ड डिस्क प्लीज सी मी. सो यहाँ पे रैम को पूछना, हार्ड डिस्क को काम देना, हार्ड डिस्क से डेटा उठ के रैम में लोड होना, ये सारे काम ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है, ये सारे काम किसका है, कर्नेल का काम है. सो कर्नेल इज मैनेजिंग द मेमोरी. कौन सा मेमोरी के पास क्या डेटा है, कौन सा मेमोरी को लेके कहां पे लोड, कौन सा मेमोरी डेटा को लेके कौन सा मेमोरी में लोड करना है, दिस ऑल वर्क इज ऑफ कर्नेल. सो कर्नेल इज अगेन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, देन डिवाइस मैनेजमेंट. अच्छा, आपका कीबोर्ड, आपके अंदर मदरबोर्ड है, आपका की इसके अंदर सीपीयू है, यहाँ पे रैम है, सारे all things are devices. All devices are being hosted on that motherboard. Then the motherboard is managing all the things. So motherboard सबको मैनेज कर रहा है. It is a hardware like this kernel, ये सारे चीज को मैनेज कर रहा है. So kernel is responsible for IO management, process management, file management, memory management, and device management. But all these management can be done by kernel. But user का इनपुट ये कर्नेल के पास पहुंचाने के लिए आपको चाहिए स्मॉल सॉफ्टवेयर्स लाइक नोटपैड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक पेंट ब्रश इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, IGI गेम, मेल से जो FTP करना, जीमेल, याहू मेल, ऑल दीज आर कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं होता था, अगर आपको कर्नेल को दिया जाता था, आप हर एक चीज को 10 में लिखते थे. क्या आप फिजिबली एक लेटर लिख पाते थे आपका गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को? 1001 में लिखते थे, राइट और नॉट? Yes, sir. Sir. Because कर्नेल knows that 0 or 1, but ये सबको मैनेज करता है. But due to these all the application softwares like Word, Excel, PowerPoint, स्मॉल जो कि जिसको सब लोग पता है, पेंट ब्रश, आपका नोटपैड, आपका डेस्कटॉप स्क्रीन, these all are called the small softwares का, जो कि application software. Because of these application softwares, the user is going to reach to this kernel. Then security software. एक बंदे को एक सिस्टम के अंदर घुसने के लिए एक यूजर आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, उसके बाद और बहुत सारी सिक्योरिटी चीज आप जाके अभी AWS में पढ़ने वाला है, तो आपको वहां पे पढ़ाया दिया जाएगा. सो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कर्नेल. अगेन सिक्योरिटी अनदर स्मॉल सॉफ्टवेयर.
देन सेल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सेल एक स्मॉल सॉफ्टवेयर है. सेल इज ए सॉफ्टवेयर which is responsible for being a translator between the user's data and the kernel. यूजर जो इंफॉर्मेशन भेजता है कर्नल के पास, बीच में सेल है. सेल ये यूजर को डेटा को लेके रीड करके सोचता है कि यस दिस कमांड और दिस इंस्ट्रक्शन और दिस रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड बाय दिस कर्नल और नॉट. सो सेल डिसाइड करता है. इफ इट कैन बी हैंडल्ड बाय द कर्नल देन सेल कर्नल के पास भेजेगा, नहीं तो उसको बोलेगा हे यूजर you are giving me the bad request, I can't manage it. So cell is responsible for being a intermediary software, or it is an application software which interacts between the user and the kernel to takes the input from the user and gives the output to the user by processing the user request through the kernel. Clear? Then user Yes, sir. Then user management. User management is a part of security, but yes, इसके ये एक another type of software होता है जो कि so इतने सारी सॉफ्टवेयर प्लस कर्नल मिलके होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यू डोंट थिंक दैट कर्नल इज ऑपरेटिंग सिस्टम. नो, कर्नल इज द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ kernel and other application softwares like user management software, cell, other application software and security softwares मिलके होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. Clear? If I will tell Windows, what is Windows? Now Windows is a kernel. Tell me one example of kernel. We can tell Windows is a kernel, Linux is a kernel, Solaris is a kernel, Unix is a kernel. तो Unix kernel, Windows kernel, Linux kernel, these are kernels. सर आप तो अभी बोल रहे थे लिनक्स ओएस में. Ubuntu is a Linux operating system, Linux based operating system. मतलब Ubuntu के अंदर जो कर्नल है वो लिनक्स कर्नल है. मैं बोलूंगा Windows Vista, Windows 2007, Windows 12, Windows 11, Windows 10. These are the operating system which consist of Windows kernel. सो विंडोज अगर कर्नल होता है, मैं आपको अभी मेरे तरफ से खींचूंगा पिक्चर की तरफ से. देखिए मेरा बोर्ड की तरफ से लेके जाता हूं. स्टॉप शेयरिंग ऑटोमेटिकली. दिस बोर्ड वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? एचडी कैमरा. आर यू एबल टू सी माय कैमरा? No, No, sir. no, sir. एक सेकेंड. मेरा कैमरा क्यों बंद हो जाता है? एक मिनट. Stop sharing. We are not able to see, right? For a minute. Stop sharing हो गया. अच्छा वीडियो बार बार कोई मेरे को यस अभी आया. आ गया सर. बट ये मेरा लैपटॉप का कैमरा ऑन हुआ है. आई वांट टू मेक द कैमरा ऑन ऑफ दैट एचडी कैमरा. एक मिनट. हाँ अभी आया. सो अगर विंडोज होता है, दिख रहा है क्या? यस, विंडोज होता है, विंडोज और लिनक्स और यूनिक्स, these are example of kernels. Okay, but मैंने अगर one of the kernel लूंगा, it's Linux kernel. लिनक्स कर्नल को यूज करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, वन ऑफ देम Ubuntu, Red Hat, सुजे, काली लिनक्स, गोरी लिनक्स है क्या अमिता? गोरी लिनक्स करके कुछ है क्या ऐसा?
नहीं है ना, नहीं है। नहीं। सो काली लिनक्स है, ओके, काली लिनक्स, ऐसे बहुत सारी लिनक्स फ्लेवर्स आर देयर। सो लिनक्स इज ए कर्नेल, so Linux can be an example of kernel, but these are the example of OS, clear? Because these all consist of Linux kernel plus some GNU application software, clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. Windows अगर कर्नेल है, Windows Vista, Windows XP, Windows 2012, Windows 2010, Windows 2007. These are the Windows operating system, whereas Windows is a kernel. So everybody is now clear about what is kernel, what is operating system, right? Yes, sir. Clear. Very good. Okay, so let me share my screen now. Now you got the Linux architecture also. Then देखिए Linux feature. ये Linux feature क्यों पढ़ेंगे भाई? तुम लोग को मैंने ट्रांसफॉर्म करूंगा विंडोज से लिनक्स को, तो फीचर नहीं बताऊंगा क्या? राइट, देखो आप लोग ना हर जगह में फीचर दिखते हैं। एक लड़की के लिए 10-12 लड़का आते हैं शादी करने के लिए, उसमें कोई एक को चूज करता है, फीचर दिखते, राइट? उसमें कौन सा बंदा अच्छा बिहेवियर है, कौन सा बंदा हैंडसम दिखता है, कौन सा बंदा का पैसा ज्यादा कमाता है, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। सो मैं अगर मेरा एक हैंडसम लवर को छोड़ के तुमको शादी करूंगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, राइट? So like this, Windows is a handsome operating system. ये Windows handsome operating system को छोड़ के ये काला वाला लिनक्स को क्यों लूंगा? काला लिनक्स, गोरी लिनक्स, राइट? नो, गोरी नहीं, काले लिनक्स या रेड हैट, जो भी यदि ज्यादा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज से थोड़ा दिखने के लिए अच्छा नहीं है, बट क्या अच्छा ये दिखता है अभी। विंडोज कोड इज विथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ओनली। विंडोज कोड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी रखा है खुद के पास। आप लोग अगर बोले होंगे कि हाँ विंडोज एंटरप्राइज वर्जन बेचता है, वो कभी फ्री नहीं करता है, विंडोज आपको फ्री नहीं मिलेगा। विंडोज को आज ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका कंप्यूटर पे यूज करने के लिए विंडोज कंपनी को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो पसंद नहीं करता है लोग को फ्रीली बांटने के लिए। बट लिनक्स फ्री है, Linux is open source, Ubuntu is open source, Red Hat is not open source, but Red Hat has some product. One is CentOS, another is Fedora. These are the, तो मैंने जो यहाँ पे लिखा था Red Hat का और भी 2-3 भाई है, उसका नाम बोलते हैं CentOS और एक होता है Fedora. These are the free operating systems. Like Ubuntu is totally free operating system, so Linux is free and Windows is not free. So this is the first cause that people should use Linux instead of Windows, right or not? मैं हर एक में क्वेश्चन पूछूंगा, यस और नो। तो आप बताओ अभी, विंडोज यूज करना अच्छा है या लिनक्स यूज करना अच्छा है? Linux. लिनक्स इज फ्री, विंडोज इज पैसा। आप लोग बोलोगे सर मेरे सिस्टम पे तो मैं कोई पैसा नहीं दे रहा। भाई तुम पायरेटेड यूज कर रहे हैं, तुम पायरेटेड यूज कर रहे, कल एक कंपनी खोल के वही कंपनी में तुम्हारा कंप्यूटर को यूज करो, 2 दिन में तुम अरेस्ट हो जाओगे, ठीक है? विंडोज यूज कर, बट लिनक्स में तुम कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बिकॉज यू आर यूजिंग द ओपन सोर्स प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा लिनक्स इज ओपन सोर्स, फ्री टू यूज, नो नीड टू पे लाइसेंस फ्री, यू कैन परचेज द पेड वर्जन ऑफ लिनक्स डिपेंड अपॉन यू। आपको अगर पैसा है, लिनक्स भी बोलता है मेरे पास भी पैसा देके खरीदना है तो खरीदो। तो रेड हैट बोला मेरे पैसा दो, मैं तुमको सर्विस दूंगा। तो फ्री में सर्विस नहीं मिलता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, फ्री सॉफ्टवेयर आर 99% परफेक्ट, और अगेन एंटरप्राइज वाला क्या 100% परफेक्ट? नो, एंटरप्राइज वाला भी 99.9999% परफेक्ट। देखो अगर फ्री सॉफ्टवेयर होता है जो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स बोलते हैं, ओपन सोर्स। तो ये जितने सारे फ्री सॉफ्टवेयर है उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। ओपन सोर्स आपको
99% देता है, 99% आपको सॉफ्टवेयर फ्री किया है। ये 99% सर्विस उसका सॉरी क्या उसको बोलते हैं, प्रोडक्ट अच्छा है। बट जो एंटरप्राइज वाले होते हैं ये 99.99999 ओके, ये परफेक्ट होता है, बट 100% नहीं है। नो सिस्टम इज 100% परफेक्ट। क्लियर? बट मैंने क्या ये 0.99 के लिए 0.99 के लिए मैंने इसको पैसा देना पसंद करूंगा बीइंग ए स्टूडेंट? नहीं। नो सर। तो मेरे लिए ये अच्छा है। उसके बेस के ऊपर 50 to 60% startup companies are also dependent upon this open source product. Because of that, open source product, this particular Linux became very, very popular. Clear? Now you understood? Then secure. ये secure फिर क्या है? विंडोज पे आप डे वन से जिस दिन आप विंडोज डाला, ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट कर दिया आपका इंटरनेट पे, धड़ास करके एक वायरस आ जाएगा, उसका 2 मिनट में बोलेगा आप एंटीवायरस को लगाओ, नहीं तो आपका सिस्टम इज अंडर डेंजर, राइट? Immediately you will install Windows operating system and connecting to internet. The second, within another second, you have to install the antivirus software, क्योंकि आपके वायरस अटैक कर जाता है। विंडोज वायरस अटैक करता है जल्दी। लिनक्स पे भी वायरस आता है, बट मैंने लिखा कि सिक्योर, नो वायरस अटैक। बट इमीडिएटली क्या लिख रहा हूं? इफ इन केस एनी वायरस, दैट मींस लिनक्स पे भी वायरस आ सकता है। बट विंडोज में जब पिक्चर, विंडोज पे जब कोई वायरस आता है, मेरे विंडोज पे एक फोल्डर रहता है, मेन फोल्डर, उसके अंदर 1000 फोल्डर रहता है, उसके अंदर हजार रहता है, राइट और नॉट? तो इतने सारी फोल्डर्स रहता है विंडोज। एक वायरस यहाँ पे गया, एक वायरस इसके अंदर गया, that virus is going to be jump to all the folders within the system within a 1 minute or 5 minutes. All your folders are going to be impacted by the virus. If it is Windows, but if it is Linux, एक सिस्टम पे वायरस आया, वो उधर ही पड़ेगा, लेथार्जी हो जाता है, उसको लेथार्जी हो जाता है, वो उधर आपका अदर फोल्डर कुछ भी इंपैक्टेड नहीं रहता है। तो व्हिच इज गुड नाउ, टेल मी? लिनक्स। यहाँ पे वायरस आया, इसी डायरेक्टरी को मैंने सीधा डिलीट कर दिया, वायरस गया ना। बट यहाँ पे एक को डिलीट किया तो बंदा इधर है ना, ये वायरस, ये फिर इधर आ जाएगा। तो वायरस इधर जाता नहीं unless until you are not using your antivirus. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप इधर का वायरस को डिलीट करते हैं, बट यहाँ पे कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है सर, क्या लिनक्स में कभी एंटीवायरस जरूरत नहीं है क्या? होता है, बट वेरी रेयरली कोई लोग ऐसे एंटीवायरस कंपनी आ जाते हैं तुमको दिखाने के लिए। डायबिटीज इज नॉट ए रियल डिजीज, राइट? डायबिटीज एक है, वो इन्हें तुम्हारा खाद्य खाना खाने का चलने का प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, डायबिटीज होगा या नहीं। उसके लिए डॉक्टर लोग क्या करें, आपको उसका दवा डाल के रखे कि भाई डायबिटीज डेंजर डिजीज है, ऐसे करोगे तो मरोगे, नहीं तो सॉरी करोगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे। सो लोगों के अंदर डाल दिया भय, लोग अभी डायबिटीज का मेडिसिन खा रहे हैं। मेरा पिताजी भी खा रहा है, मैं भी दे रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम इज नाउ लाइक दिस, आवर एनवायरनमेंट बिकेम लाइक दिस। सो लाइक दिस, ऐसे बोल बोल के लिनक्स के पास कोई लोग वायरस एंटीवायरस छोड़े, बट यस लिनक्स पे वायरस एंटीवायरस लगता है, बट यहाँ पे जैसे लगता है इधर नहीं। तो समझ में आया क्या है फायदा आपको इसमें? समझ रहे हैं लिनक्स पे? देन द स्कोप ऑफ द वायरस
is limited to that particular folder only without replication. No antivirus is required. If virus is there, we can easily delete the virus, whereas Windows, you must have the antivirus still. Okay. एंटीवायरस होने के बाद भी स्टिल नॉट श्योर, आपको बोले कास्परस्काय ये लोअर वर्जन ऑफ एंटीवायरस, बट आपके पास हायर वर्जन है, आप नॉर्टन एंटीवायरस डाल दीजिए, नहीं तो ये आप करप्ट कर देगा, तो आप डर के फिर और एक एंटीवायरस खरीद लेते हैं। तो विंडोज आपको जीवन भर पैसा लुटेगा, पर आज लिनक्स आपको कभी ऐसा लुटता नहीं। देन फॉर हैकर्स, ये एक सीली थिंग में डाला हूं, आप इसको देखो, ये लोग बिलीव कर रहे हैं, करो नहीं तो नहीं। हैकर लोग ना लिनक्स को अटैक करने के लिए थोड़ा टैलेंटेड बनना पड़ता है, बट विंडोज में क्योंकि इसको प्रोग्रामिंग लिख के ही अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वो हैकर को क्या कुछ कामदार नहीं है, एक ही फोल्डर को वायरस से अटैक करने के लिए वो इतना रिस्क लेगा। हैकर लोग जब वायरस अटैक करते हैं, अगर वो पकड़ा जाता है उसके ऊपर केस होता है। वो आपका एक ही फोल्डर को सर्वनाश करने के लिए थोड़ी आपके सिस्टम में घुसेगा, नो राइट। अरे चोर आपके घर पे घुसता है, कल टीवी लेके जाता है क्या? वो सब कुछ लेके जाता है राइट। वो आपके घर पे चप्पल खरीदने के लिए थोड़ी है, चप्पल चोरी करने के लिए थोड़ी आएगा। तो हैकर कभी लाइनक्स को अंदर घुसने के लिए डरते हैं। एक रैंसम वायरस आया था 2016 या 17 में, सारे विंडोज वाले मतलब सर पे हाथ देख के बैठे थे, पैराज लिनक्स लोग आराम से जैसे पहले चाय पी रहे थे उसे ही चाय पी रहे थे बाहर जाके। समझ रहे? क्लियर? जी सर। सिंप्लीफाइड अपडेट फॉर ऑल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। सिंप्लीफाइड अपडेट, जितने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, अगर जरूरत पड़ता है तो उसको अपडेट करना इजी रहता है थ्रू सिंपल कमांड्स। बताऊंगा जो टाइम में लगता है। तो उसके बाद लाइट वेट, जब आप लिनक्स का ओएस को, जब आप सिस्टम को बूटिंग करते हैं, तो आपका हार्डवेयर के अंदर मतलब आपका हार्ड डिस्क के अंदर लिनक्स रहता है, तो वो जब आके रैम में राइट होता है, ओनली 350 to 500 MB स्पेस लेता है आपका सिस्टम का, जो रैम का। बट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप चलाते हैं, आपका हार्ड डिस्क से कम आके जब रैम में लोड होता है, 1.5 GB खाली ओएस ले लेता है। तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे बहुत ही कम जगह कंज्यूम करता है। यहाँ पे लिखा मैंने वही, साइज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लेस फॉर विच रैम कंजप्शन इज वेरी लेस टू सो दैट हाई परफॉर्मेंस। देखो जहां पे आपको जगह मिलेगा, आपका बच्चे देखो आपके घर पे एक पूरा सोफा प्लस उधर टेबल, उधर बर्तन गदा मतलब रखा है, एक बच्चे को बोल रहे हैं घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, बच्चे जितना भाग नहीं पाएगा, एक रूम का पूरा खाली कर दो, उसमें बच्चे ज्यादा अच्छे भाग पाएगा राइट। तो आपका प्रोसेसर को अगर प्रोसेसिंग करना है कोई चीज, रैम के अंदर ज्यादा स्पेस फ्री चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा जगह खा लेता है, तो वहां पे तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करने के लिए कम स्पेस मिलता है। कम स्पेस जब मिलेगा, वहां पे आपका प्रोसेसिंग स्लो होगा, दैट्स व्हाई परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर जो रैम में लोड होता है, बहुत कम जगह लेता है रैम का, तो ताकि ओनली 300 to 400 MB लेता है, अलग जगह बच जाता है, जहां पे प्रोसेसर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए ज्यादा जगह मिल जाता है, तो वहां पे परफॉर्मेंस फास्टर होता है। क्लियर दिस पॉइंट? एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ये जो मल्टीटास्किंग एंड ये हर जगह में समान है, बट मल्टी यूजर जो है लिनक्स में कोई लिमिटेशन नहीं है यूजर बनाने के लिए, बट विंडोज में यूजर पर यूजर बेसिस विंडोज कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको सपोर्ट देने के लिए पैसा लेता है। एंड मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड जाता हूँ। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो क्या है कि बहुत ही सारी विंडोज के पास ओनली 2-4 ऑप्शन है। पहले आया था विंडोज 98, जब एक्सपी आया 98 गया खत्म, लोग 98 क्या है सोच आप लोग को पता भी नहीं होगा विंडोज 98 करके तू था करके, एक्सपी भी पता नहीं होगा। अभी विंडोज 2007, विंडोज 11, विंडोज 10 ये सब चल रहा है राइट। तो जब विंडोज 7 भी अभी बहुत लोग का सिस्टम पे नहीं है, बहुत लोग भूल गए होंगे, विंडोज 10 आ जाता है, विंडोज 7 को लोग यूज ही नहीं करते। एम आई राइट? यस सर। बट देखो
यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं, एक के बाद एक नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पैरेलल है। आप चाहे फेडोरा यूज करो, आप चाहे इवेंटू, सब लोग लाइव है अभी। ऐसे नहीं कि विंडोज 10 जाने के बाद विंडोज 11, अभी विंडोज 11 एक बार आ गया, विंडोज 7 को विंडोज कंपनी सपोर्ट देना बंद करता है। क्या करता है पता है? विंडोज 7 को सपोर्ट किया, विंडोज 10 कर दिया, 11 कर दिया, 12 कर दिया। अभी अगर विंडोज 7 को लोग यूज करेंगे, विंडोज 10 उसका सेल नहीं होगा, विंडोज 12 उसका सेल नहीं होगा। तो विंडोज 12 को सेल करने के लिए विंडोज 7 का सपोर्ट बंद कर देता है। तो आप जिस टाइम में विंडोज 7 यूज करोगे, सपोर्ट अगर बंद है, आपको कुछ इशू हुआ तो ये लोग कुछ गलती ठीक नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आप विंडोज 12 को खरीदोगे। तो मोनोपोली बना के रखा है कि बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज द ओनली कंपनी who is developing Windows 7, Windows 10, Windows 11, Windows 10 everything। तो वो नेक्स्ट प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पुराना प्रोडक्ट को सेल करना बंद करता है, सपोर्ट भी बंद करता है। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. So beautiful. राइट। पहले देखो हर एक चीज ऐसे ही होता है कि मारुति उसका पहला छोटा छोटा प्रोडक्ट को बंद कर दिया होगा, लाइक दिस। तो इधर क्या है कि सॉफ्टवेयर, ये तो डिफरेंट कंपनीज एंड कम्युनिटीज, कोई एक ही कंपनी सबको नहीं बनाया। ये फेडोरा, सेंटोस, इवेंटू, दीज आर ऑल डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट कम्युनिटीज। लाइक योर आइसक्रीम, मैंने यहाँ पे आइसक्रीम पिक्चर इसलिए दिखाया कि भाई ये तुम्हारा कोई बटर स्कॉच अच्छा लगता है, तो कोई लड़की को पिंक कलर अच्छा लगता है, कोई किसी को ऐसा ये क्या पिस्ता अच्छा लगता है। डिफरेंट क्या है, कलर डिफरेंट है, थोड़ा टेस्ट डिफरेंट है, बट कैलोरी वैल्यू सबका समान है। ठंडा लगेगा, माउथ को अच्छा लगेगा, बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट चॉइस लोग क्या करते हैं इसको। यहाँ पे भी वही चॉइस इज योर्स। आप आज यूज कर रहे, कल इच्छा हुआ फेडोरा यूज करेंगे। देखो आप आज पिस्ता खा रहे, कल आप बटर स्कॉच भी खाते हैं, राइट? सेम, आप आज इवेंटू यूज करें, इवेंटू को कल डिलीट कर देके आप कल फेडोरा यूज करो। तो दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल विथ यू। सो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है अगेन। तो लोग मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूट, देखो एक दुकान में 5 आइसक्रीम मिलते हैं, आप वो दुकान को जाओगे ना, तो लिनक्स ने इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दे के लगाया, ऑब्वियसली आप लिनक्स के पास जाओगे। और मैंने उसके पहले फीचर बताया और आपके साथ इतने ऑप्शन दे रहा हूं, अब भी आप बताओ किसको लोगे, विंडोज लोगे या इसको लोगे, बताओ। Linux. ट्रू रिव्यू दीजिए, ऐसा साल पड़ा रहा इसलिए नहीं, आपको अच्छा लगना चाहिए। नेक्स्ट फिर हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में, आज हमारा टाइम हो चुका है 1.5 घंटा, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लिनक्स सेल टाइप पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल चीज करेंगे। जो चीज मैं बताया अभी तक वो सबको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है? So guys, I hope everybody enjoyed today's session. If any doubt, please let me know so that I can clear your doubt and I will wind up this session for today. सर लिनक्स का इंटरफेस कैसा है? लिनक्स का इंटरफेस तो GUI है प्लस CLI है। देखिए मेरा ऐसे है, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूं, देखो ऐसे टाइप का है। ये मेरा मैक सिस्टम है, सेम एग्जैक्टली ऐसे ही है। लिनक्स का जो इंटरफेस आपका ऐसे मिलेगा, बट हम लोग जो दिखने वाला है यही दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है? इसको दिखने वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट। क्यों ना? GUI अगेन सीखोगे तो फिर विंडोज को सीखने वाले बंदे डोंट टेक इट इन अदर वे। विंडोज को जो पूछेंगे तेरे को क्या पता है ना, मेरे को सब कुछ तो डबल क्लिक में खुलता है, इसलिए मेरे को जरूरत नहीं है एक फोल्डर को खोलने में क्या होता है, एक फाइल को खोलने में क्या होता है। आप विंडोज में हर एक चीज को डबल क्लिक में करते, राइट? बट यहाँ पे डबल क्लिक नहीं, यहाँ पे हर एक चीज के लिए अलग अलग कमांड सीखना पड़ेगा। जो चीज आप विंडोज में लग रहा था बहुत इजी, यहाँ पे वही चीज बहुत डिफिकल्ट है। सर डिफिकल्ट चीज क्यों सीखेंगे ना, जरूरत होता है। ओके, अच्छा आप दाढ़ी काटने के लिए करत यूज करोगे क्या? नहीं सर। बट ब्लेड में पेड़ काट सकते हैं, राइट? ब्लेड में पेड़ काट सकते हैं। तो ये होता है, जो लिनक्स पढ़ाने वाला हो ना, इसमें कमांड सीखने के बाद आपका ये ब्लेड बन जाता है, आपका ये सबसे लोअर लेयर बनता है। आप ये लोअर लेयर जब सीखोगे आप टैलेंटेड बनोगे, आपका दिमाग शार्पनेस बढ़ेगा, प्लस आप सिस्टम प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई बड़े बंदा बन सकते हैं। आप भी ऐसे अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। बट विंडोज ज्यादा सीख लिया सबको डबल क्लिक, भाई डबल क्लिक में कोड बनता है क्या? डबल क्लिक में कभी कोड नहीं बनता है। तो वी गाइस आर गोइंग टू
We interact with the this only to be the programmer. सर आप बोले थे डेवॉप्स प्रोग्रामर, डेवॉप्स सीखने में प्रोग्रामिंग करना नहीं पड़ेगा? नो, पूरा नहीं। अगर आप जावा प्रोग्रामर बनोगे 1000 लाइन कोड लिखते थे, यहाँ पे 10 लाइन कोड लिखोगे, बट लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes. It So is very can very Yes, easy. sir. It is very very easy than the data engineering course. It is very very easier than Java programmer. Very very easier than data scientist. Yes, yes. Just learn the tools, just button click everything, and some small software, small coding. It will take you and you will get a very good salary. Okay, So one question from slide number 5. Could you please go there? please. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Yes. So when we go to DBMS application, suppose I have an application which has a which stores huge amount of data on daily basis, and let's say the disk size is 500 GB. So that 500 GB disk will fall under which section in this picture? It will come in the hardware, or it will be at the application level? It will be in the operating system kernel and this white part. Okay, it will be Okay. stored in your this area if Mhm. you have hard disk is here. So Mhm. मैंने यहाँ पे सॉरी ये इट विल बी इन द हार्डवेयर, सॉरी मैं आपको गलत बोला, ये हार्डवेयर में रहेगा बिकॉज हार्डवेयर कंटेंट्स हार्ड डिस्क। ओके, बट उसको मैनेज करने के लिए दिस कर्नेल एंड दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू। It will be stored into the hardware only because hardware contains hard disk, hardware contains RAM, hardware contains everything. Okay. तो आपका FTP कर रहा है, ये मेल जा रहा है, देखिए FTP कर रहा है, ये एक फाइल जा रहा है, मेल कर रहा है, जीमेल कर रहा है, वो एक चिट्ठी जा रहा है किसको, राइट? तो ये मेलिंग करता हूं, इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर, बट फाइनली कहीं पे जाके स्टोर तो होता है ना, जहां पे स्टोर होगा दैट इज ए हार्ड डिस्क। तो ये मेल भी जाता है, मैंने आपको एक मेल भेजा, वो मेल आपको दिखता है, दैट मींस ये कोई एक हार्ड डिस्क में स्टोर होके आपको दिखता है, बट बिकॉज ऑफ फास्टर आपको लग रहा है कि सब कुछ इंटरनेट कुछ नहीं। इंटरनेट इज ए सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडिंग यू ए सर्विस टू सी द कंटेंट इन द स्क्रीन, बट इट इज फेचिंग फ्रॉम ए हार्ड डिस्क। ओके, तो everything this DBMS application software, FTP, ML, so all are storing their data permanently in the hardware. but ये हार्डवेयर से डेटा तुमको 01 दिखता है या कैसे दिखता है? तुम्हारा परमाणु दिखता है, राइट? Right. तुम्हारे परमाणु दिखाने के लिए ये कर्नेल एंड सेल आर रेस्पॉन्सिबल, these two events, but mainly कर्नेल अगेन इस सबको 011 में रखता है, बट सेल आपको आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाता है कर्नेल से लेके इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। I hope everybody clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. और किसके को डाउट? DBMS में डेटा DBF फाइल में स्टोर होता है, वो एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट में स्टोर होता है। सो जो चीज DBMS में स्टोर होने के लिए 5 GB लेता है, वही चीज अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ट्रीट करोगे वो कम से कम 10 GB लेगा। तो DBMS सॉफ्टवेयर उसको अलग तरीके से ट्रीट करता है। इट इज अनदर लेयर बनता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जो कि डेटाबेस से डेटा मतलब हार्डवेयर से डेटा को खींच के डेटाबेस फॉर्मेट में लोगों को दिखाता है और उसको सेल हेल्प करता है। सेल के ऊपर मतलब सेल के थ्रू पे आप DBMS सॉफ्टवेयर को कंटैक्ट करके कर्नल के पास आपका रिक्वेस्ट पहुंचाते हैं। गेटिंग मी? सब कुछ हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे जब हम लिनक्स पढ़ेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये जस्ट थ्योरी पढ़ा है। बट आपको अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है इतना बताओ, समझो, मैंने जैसे समझा रहा हूँ आपको, जैसे लेवल पे समझाना है समझना है समझो, बट रिटर्न राइट करने के लिए इस टाइप का कुछ लिखिए। मैं आपको कल के बाद नोट दे दूंगा, हैंड राइटिंग नोट। ओके, तो मेरे एक स्टूडेंट था प्रीतम बेहरा करके, आफ्टर 6 ईयर बिफोर 6 ईयर, तो वो मल्टीपल टीचर से पढ़ के मेरे पास फाइनली पढ़ा था लिनक्स।
उसके बाद वो खुद एक नोट प्रिपेयर किया था, उसका हैंड राइटिंग। तो मैंने कभी नोट प्रिपेयर कर नहीं पाया, मैंने जो पढ़ा है लोग बहुत नोट किए, बट मुझे यही नोट सबसे अच्छा लगा। मैं आपको वही नोट आपको दे दूंगा, हैंड राइटिंग नोट, इट इज हैंड राइटिंग नोट, बट आपको पढ़ाऊंगा मैंने ऐसे। तो आप, हाँ, जितना पढ़ाऊंगा वो हैंड राइटिंग नोट पे मिलेगा, बट हैंड राइटिंग नोट का ऑल थिंग्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर एवरीबॉडी? Okay, sir. और उसको बोलूँ और एक बार, मैं जितना चीज पढ़ाऊंगा, लेट्स से मैंने आपको 50 चीज पढ़ाऊंगा, वो सारे 50 चीज वो नोट में रहेगा, बट वो नोट का सारे चीज आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वो प्रीतम बेरा जो है वो 2.5 महीने का खाली लिनक्स कोर्स किया था वैसे। तो दैट इज ए बिगर कोर्स, लिनक्स इज ए बिगर कोर्स, बट डेवऑप्स इंजीनियर के लिए जितना चाहिए मैं आपको उतना दूंगा, दैट इज अराउंड 40 आवर सेशन आपको दूंगा, बट मैंने 100 आवर पढ़ा था लोगों को लिनक्स। ठीक है, नहीं तो आपका टाइम चला जाएगा बहुत अननेसेसरली, 6 मंथ तक चला जाएगा। 40 आवर में हम लोग डेवऑप्स रिलेटेड सारे कंटेंट क्लियर करेंगे। सो आज इतना रखते हैं, और कुछ डाउट है क्या अमिता या अविनाश? एक्चुअली मैं अमिता का नाम क्यों लेता हूँ, एक लेडीज है पहले, दूसरा है कि वो 2-3 बार मुझे पूछ चुका है कोई चीज, सो मन में रह गई, और आप लोग भी कुछ दिन के बाद ऐसे रह जाओगे, डोंट वरी। सो मैं सबका नाम लूंगा एक के बाद एक। हेमंत, दिलोक जेना, सर यस सर। क्लियर एवरीबॉडी? देन यस सर। सोनल, आपको कैसे लगा? सर इसका वीडियो कब आएगा फिर? वीडियो आधा घंटा 1 घंटे के अंदर में मतलब कर दूंगा सोच रहा हूँ, बट आज रात को हो जाएगा। सर आज रात को थोड़ा कर दीजिए, सही रहेगा। क्लास में समझ में आया क्या पहले? जी 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 मजा आया? जी बहुत मजा आया ना? ठीक है, जी सर। बाय गाइस, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Sir, good night. Nice.